ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एक बार ये वैभव अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देना, अनिवंदन एंड फिर अंशु भैया, फिर हम स्टार्ट करते हैं। और एक Okay, रिक्वेस्ट give me a cue when you want me to start with the introduction. राइट। तो जो भी बोलेगा सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कर लेना, जो भी आपका नाम है और जो भी आप रिलेटेड डाउट पूछना चाहते हो, चाहे वो आईआईटी है, एनआईटी है कि बिट्स है, बस अपना आपको एड्रेस कर सकते हैं, राइट। और एक एक करके ट्राई करना कि स्टार्ट करें हम। सो या हाँ, स्टार्ट करते हैं। Hello, So, hello, bro. I am Akash from Vizag, okay, and I have scored 207 marks in BITS exam. you have scored, sorry? 207 marks in BITS exam. Yes, So maybe I would be getting BITS Hyderabad campus mechanical branch yes, as of last year cutoff. But till now, three iterations have been completed, but still till now I didn't get it. okay. So, in which order you have just set your preference list CSC, ECE, Triple E, ENI, mechanical. of Hyderabad campus? Of Pilani, Goa, and Hyderabad, all three. Okay. So, are you expecting that you are getting your allocated branch in iteration 4, or what's your basically doubt? Can you just elaborate on that? No, after taking mechanical, like doing some courses and going to IT sector only. या सी अगर तुम्हें इंटरेस्ट है बिट प्लानिंग में, तो इट इज नॉट लाइक दैट कि अगर तुम मैकेनिकल में आते हो यू नॉट कैन नॉट एक्सप्लोर द आईटी सेक्टर। डेफिनेटली एक वो पाथवे भी हमेशा ओपन हाँ, रहेगा, राइट। तो yeah, नॉट ओनली बिट्स, आप तुम किसी भी कॉलेज में जाओगे वो पाथवे हमेशा ओपन रहेगा। तो okay, हाँ, तो वो उसमें आपको डाउट रखने की जरूरत नहीं है, राइट। बट हाँ, वो कम्प्लीटली आपके ऊपर होगा, सिंस आपको एडिशनली एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, राइट। क्योंकि जो ऑलरेडी लोग सीएस वगैरह कर रहे हैं, तो वो उस पर्टिकुलर okay, पार्ट में पढ़ रहे हैं, राइट। पर आप नहीं कर रहे, तो एडिशनली आपको क्या पता उनके कंपैरिजन में कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। या ये एक फैक्टर okay. कंसीडर करके चलना पहले से ही। Bro, another question. या Is it possible that just that probability is less as compared to people who try for tech sectors in phonics branches? या Because all companies allow circuit branches and 50% allow mechanical branches. Serialization. या जस्ट दो मिनट टेक ओवर करना। I'll give you an example. We'll code this as well. Don't Huh, worry. so So I'll I'll give you. You may take have the you may question have. over, although I don't know what the exact thing is in the BITS Pilani, any of the three campus. But like as far Doubt right as now. Kunal, we know you're saying for it like stores data, me but what type of personally, I data? also am pursuing mechanical engineering. So something would what I would like to say is that like the thing you said is uh correct for like some companies they do have criteria that will only allow circuitry branches, but most of the tech companies they don't have any such criteria. And like at least in our campus, and even like they don't have any specific criteria for like a very high GPA. They just want you to have the minimum 7.5 GPA. So that is what is with the most of the tech companies. I don't know what specific is in the BITS Pilani campus. I think Saj can answer that. That what are तो the tech बेसिकली फाइनेंस company के rules? रिलेटेड डाउट है, आई वुड लाइक कि Where निश्चित is भी वो this data आंसर coming? करेंगे। जस्ट गिव मी 5 मिनट्स, राइट। ही विल जस्ट आंसर दैट थिंग। बट या वी विल टेक योर क्वेश्चन, राइट। सो Okay, okay, bro. I will take for BITS Pilani. So I think that what you are saying is that if you come to BITS Pilani, you will see that many seniors in BITS Pilani campus also, they are from mechanical branch. I'm saying they are pursuing Okay, things like ML. You can pursue a minor in data science or something like that, and you can okay. pursue anything in tech. You have technical clubs from where you can get exposures. You can contact seniors as well. But saying that almost 60-70% companies will be open for matlab, almost every branch. If you are trying to get into IT sector, not all companies will be open. But of course, if you are trying for IT sector and you have the skills to matlab, go to the certain companies, you can definitely try for IT sector from a mechanical branch as well. And you will see that many seniors, matlab, not from mechanical, even from civil branches are going in IT sector in our Okay. campus.
Bro, and the job will be like a software developer or data analyst. Like, You will get both the jobs. Matlab, I am saying that almost say that like 100 companies are coming for software developer role. So like say okay, so 90% 100 companies will be open for computer science. 90 to say 80% companies will be open for the Phoenix branches, and 60% companies will be open for all the branches. So even if you are from mechanical, you will get 60-65 companies for software developer role here. And like I am saying that from mechanical, you have very good exposure in ML. So if you are interested in that, you can explore that as well. Okay. Thank you, bro. Right. हेलो ब्रो. हेलो, हाय. हेलो भैया, मुझे डाउट था कि मेरे अभी 268 मार्क्स है फिलहाल. राइट. एंड मैं अभी वेट लिस्ट में हूँ. मैं 2 मार्क्स दूर हूँ ईएनआई पिलानी से, एंड ऑलमोस्ट 10 to 9 मार्क्स दूर हूँ मैं ट्रिपल पिलानी से फिलहाल. तो मेरा डाउट ये था कि मुझे अभी जिस तरह का हाल चल रहा है कि कट ऑफ्स गिरने रही है, तो मुझे अभी श्योर नहीं है कि ये भी अभी मिल पाएगी नहीं. तो मेरे पास इसका बैकअप ऑप्शन अभी पैक में सीएस मिल जाएगी मुझे, अगर मैं सीएस में बैठूँ. पैक में सीएस या सीएस एआई वाली दोनों में से कोई पक्का मिल जाएगी. तो मुझे वहां से विड्रॉ यहाँ मुझे पक्का मिल जाएगी. मुझे बस ये पहला डाउट ये था. एंड दूसरा, यहाँ पे अगर मैं मुझे फिंक्स फाइनेंशियल बेसिकली अगर कुछ भी मिलता है, तो फिर मैं माइनर अगर ब्रांच है जो कि व्यवस्था बहुत मुश्किल है नॉर्मल वर्टिकल करना, पर अगर वो नहीं होती तो फिर मैं माइनर अगर कोई परस्यू करता था डेटा साइंस में किया, तो उससे मतलब मुझे कोई एडेड एडवांटेज वगैरह मिलती है कि मैं सीएस के एट पार आ जाऊं, कुछ उस तरह की चीज. राइट. तो बेसिकली सबसे पहले तो यही तुम रिकॉग्नाइज करो कि तुम्हें इस पॉइंट पे कौन सा कॉलेज तुम्हें जाना है. राइट. कि अगर तुम्हें पैक की तरफ जाना है तो बी वेरी श्योर विद दैट, क्योंकि कॉलेज सबसे पहले नहीं, डिसाइड मेरा करना है. चॉइस बिट्स पे लानी है, पर वो मेरा बैकअप है बेसिकली. राइट. तो मोस्टली हो सकता है कि अगली आइट्रेशन में अगर तुम 2 से 3 मार्क्स दूर हो, कि इतना ड्रॉप तो एक्सपेक्ट कर ही रहे हैं, अगर नेक्स्ट आइट्रेशन में नहीं, अगर आइट्रेशन 5 होती है तो मोस्ट प्रोबब्ली होगी इस पॉइंट पे आइट्रेशन 5, पर जस्ट कैन नॉट से बट एनीथिंग पर्टिकुलरली अबाउट दैट. पर या इस पॉइंट में तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि तुम्हें बिट्स में मिल सकता है अगर तुम सिर्फ 2 से 3 मार्क्स दूर हो. राइट. क्योंकि इतना ड्रॉप तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम. सिंपल रीजन जी. क्या है कि इस पॉइंट में काफी लोग विड्रॉ कर रहे हैं सीट आफ्टर द आइटरेशन फोर्स, अगेन लूजिंग देयर होप्स कि उनको कुछ नहीं मिलेगा. राइट. तो मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि तुम इस पॉइंट पे ऐसा मत करना, स्पेशली अगर तुम इतने पास हो. राइट. तो हाँ, तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो पिलानी में सीट, एंड या पिलानी भी काफी अच्छी ऑफर तुम्हें करती है. अपार्ट फ्रॉम योर तुम्हारे हमारे माइनर्स भी होते हैं, उसमें तुम डाटा साइंस सीएस वगैरह एक्सप्लोर कर सकते हो. राइट. अच्छा, वो भी काफी अच्छी ऑप्शन रहेगी. पर अगेन मैं यही कहूंगा कि अगर तुम ईएनआई वगैरह किसी और ब्रांच में बड़े एडिशनल एफर्ट्स अपने से भी करने पड़ते हैं, तो कीप दैट थिंग इन माइंड बिफोर जॉइनिंग हाँ, मैं दिस. समझ गया. ठीक है. एंड जो Okay, adding on to what बोलो. जी जी, हाँ बोल. अब मैं कह रहा था जो सहजने का है उसके अलावा एक ऐसा होता है कि अभी तुम्हारे 2-3 मार्क्स हैं, तो होता क्या है अभी जो स्टूडेंट्स हैं वो काफी सारे कॉलेजेस में सीट अपने जोसा वगैरह में भी वो मतलब लेके रखते हैं. तो फिर ऐसा होता है सारे लोग सीट रखते हैं, तो फिर जब लास्ट इटरेशन की तरफ बढ़ते हैं तो काफी मेजर ड्रॉप्स आता है. तो आई वुड से कि अभी विड्रॉ नहीं करना चाहिए. और लाइक जो तुम्हारी पैक की सीट है, जब तक हमारे पास वहाँ पे भी 100% रिफंड का ऑप्शन या मतलब लाइक माइनर डिडक्शन के साथ रिफंड का ऑप्शन जब तक रहता है, तुम वो सीट भी एक बैकअप की तरह रख सकते हो. वरना तुम्हें यहाँ पे ठीक ठाक चांसेस है कि पिलानी में तुम्हें सीट मिल जाएगी. और रही बात जो तुम्हारी वो डेटा साइंस और कंप्यूटर साइंस वाली, तो लाइक माइनर करने से जी. ऑफकोर्स तुम्हें एडेड एडवांटेज मिलते हैं. काफी सारी कंपनीज के लिए तुम एक्स्ट्रा एलिजिबल हो जाओगे, बट ऑफकोर्स मतलब सेम नहीं हो जाएगा, लाइक तुम सीएस के बराबर नहीं हो जाओगे, बट एडवांटेजेस काफी होते हैं. तो काफी सीनियर्स होंगे जो तुम्हारे डेटा साइंस वगैरह एक्सप्लोर कर रहे होते हैं. फिर जो कुछ स्पेसिफिक कंपनीज आती है जिनको स्पेसिफिकली वही रोल चाहिए होता है, तो वहां पे तुम्हें एक अपर हैंड मिलेगा. तो वो सब फायदा होते हैं, बट वो सब चीजें तुम कॉलेज में आके एक्सप्लोर कर सकते हो. ठीक है भैया, थैंक यू. Hello. Hello. Okay. हाँ, कश्यप. Okay, I'll go. ऋषिकेश. Rishikesh Deshpande. Currently, I've been allotted ECE at Pilani campus. And अभी मैं MHTCT के भी महाराष्ट्र ये जो रहता है उसके भी प्रोसेस में हूँ. एंड जहाँ तक मैंने पढ़ा है, I'll probably get COEP पुणे का CS ब्रांच. COEP पुणे इज ऐसे बहुत ऐसे उसका इज्जत रहता है इन महाराष्ट्र, वेरी गुड कॉलेज एंड सो ऑन.
तो यहाँ पे एक हल्का सा एक सॉर्ट ऑफ डिलेमा आ रहा है, जो अभी the काटा जो है वो बिट्स पिलाने की तरफ ही है मेजरली, बट स्टिल आई वांट टू गेट सम बेटर इनपुट्स ऑन दिस थिंग कि सीयूएपी पुणे का सीएस ब्रांच विच प्रोबेबली थ्रू जेई मेंस भी वो एक्सेप्ट करते हैं, तो थ्रू जेई मेंस मिल सकता है मुझे, वेरी हाई चांस, और पिलानी इसी हैज बीन अलॉटेड, तो उसमें क्या थॉट प्रोसेस रहेगी आपकी? लाइक आई विल से कि अगर फीस एक कंसिडरेशन नहीं है यहाँ पे, अगर फीस से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बिट्स पिलानी ईसी इज डेफिनेटली अ बेटर ऑप्शन ऑफ। ओके और फिर एक प्रॉब्लम ये होती है कि तुम्हें अगर तुम्हारे घर के पास है तो लाइक अगर तुम्हें उससे डिस्टेंस से प्रॉब्लम नहीं है, लाइक मेरे हिसाब से सिर्फ दो प्रॉब्लम्स, एक फीस और एक डिस्टेंस, अगर दोनों में तुम्हें दिक्कत नहीं है तो बिट्स पिलानी ईसी इज डेफिनेटली बेटर ऑप्शन। लाइक कॉलेज बहुत पुराना है, काफी अच्छा एलुमनाई नेटवर्क है, तो तुम्हें यहाँ पे लाइक एकेड्स के अलावा भी काफी सारी चीजों का एक्सपोजर मिलेगा। लाइक काफी सारे यहाँ पे जो फेस्ट होते हैं वहाँ पे काफी अच्छा एक्सपोजर होगा, क्लब्स हैं जो लाइक हर right. कॉलेजेस में होते हैं, बट यहाँ पे वो स्टैब्लिशमेंट काफी अच्छी है। यहाँ पे जो तुम्हारा स्टूडेंट जूनियर इंटरेक्शन होता है वो तुम्हें मतलब लाइक तुम जब आगे जाओगे फ्यूचर में तुम्हें मतलब काफी कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ पे सारी चीजें होती हैं फ्रॉम फेस्ट टू लेके एवरीथिंग दैट इज स्टूडेंट रन, तो तुम्हें वो फर्स्ट हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलेगा चीजों का। तो लाइक डेफिनेटली मतलब आई थिंक यू शुड गो फॉर बिट्स पिलानी ईसी। राइट, ये दो जो आपने पैरामीटर्स बोले, इसमें फीस वाला आई वुड से इट्स प्रीटी मैनेजेबल, एंड आई एम लाइक थिंकिंग ऐसे कि इट्स अ सॉर्ट ऑफ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट विद स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स कंसीडरिंग मैं काम करूँ अच्छे से डिसेंट तरीके से, वो एक बात है। डिस्टेंस का हल्का फुल्का इशू है, आई लिव इन मुंबई, तो ठीक है, वो इतना ह्यूज फैक्टर प्ले नहीं करेगा, तो ठीक है, फाइन, थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू। हेलो भैया, आदित्य स्पीकिंग हियर। हेलो भैया। हाँ आदित्य, गो अहेड। यस भैया, मेरे 194 आए थे बिट्स पिलानी के उस जो एग्ज़ाम था उसके अंदर, और उसमें मेरे को एक्सपेक्टेड था कि लाइक सिविल तो मतलब मेनली मेरे को पिलानी कैंपस चाहिए था, है ना। सो उसके अंदर मेरा ये था कि मेरे को लाइक सिविल एंड मैन्युफैक्चरिंग इजीली मिल जाएगा, क्योंकि मेरा लास्ट ईयर के कट ऑफ के कंपैरिजन में 27 मार्क्स का डिफरेंस था, है ना। बट इस साल लाइक लोग कह रहे हैं कि 200 से कम पे नहीं मिलने का है कहीं भी आपको एडमिशन। सहज, हाँ गो अहेड। सो बेसिकली कंप्लीटली थिंग्स वेरी कर सकती हैं, राइट। हर एक पॉइंट पे काउंसलिंग के एडमिनिस्ट्रेशन खुद नहीं बता सकती है कि वो इस पॉइंट पे कितना कट ऑफ का ड्रॉप आएगा। सिंस बेसिक फैक्टर तो यही रहेगा कि कितने लोग इस पॉइंट पे हमारी सीट्स छोड़ते हैं बिट्स पिलाने के अंदर ऑलरेडी एडमिटेड हैं, राइट। तो हाँ, ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। पर पिछले साल के ट्रेंड में भी जाएंगे तो इमीडिएटली हम देखते हैं आइट्रेशन 4 से आइट्रेशन 5 ना, किसी भी आइट्रेशन में जब जंप करते हैं तो इमीडिएटली ड्रॉप मिलता है, राइट। तो राइट, इस पॉइंट पे भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्या पता इमीडिएटली ड्रॉप आए। पर अगेन कट ऑफ के बारे में इन पर्टिकुलरली इतना कमेंट नहीं करना चाहिए, राइट, क्योंकि कुछ राइट कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन भी हो कराने की, वो भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, राइट। जी भैया, एक डाउट और था मेरा भैया कि फॉर एग्जांपल लाइक मैं कोई भी ब्रांच लेता हूँ पिलानी कैंपस के अंदर, राइट, तो उसके बाद मेरे को लाइक मास्टर्स परस्यू करना है फॉरेन से सीएस के अंदर, तो क्या मतलब मैं लाइक आफ्टर अगर मैं फिनिक्स ब्रांच के लिए जाता हूँ लाइक नॉन कोर ब्रांचेस के लिए आपकी, है ना, तो उसके बाद मैं लाइक कंप्यूटर साइंस परस्यू कर सकता हूँ लाइक मास्टर्स की बाहर यूएस में या कहीं और? हाँ कर सकते हो। तो आई विल से द थिंग इज कि यहाँ पे अगर तुम्हारा श्योर हो कि तुम्हें तो मास्टर्स परस्यू करना है तो आई विल से कि तुम्हें जो बेस्ट कॉलेज मिल रहा है वहाँ पे तुम कंप्यूटर साइंस ले लो, अगर तुम मतलब 100% कंफर्म हो कि तुम्हें मास्टर्स करना है कंप्यूटर साइंस से। ऐसा नहीं कि लाइक यू विल डेफिनेटली तुम मतलब किसी भी ब्रांच से अपना मेजर स्विच कर सकते हो, लाइक तुम इसी या ट्रिपल या किसी भी ब्रांच में हो तुम वहां से कंप्यूटर साइंस में कर सकते हो, बट थोड़ा सा वो और ट्रिकी हो जाता है, थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगेंगे। लाइक अगर तुम कंफर्म हो तो आई वुड से कि तुम्हें दूसरे किसी बेटर कॉलेज में कंप्यूटर साइंस लेना चाहिए। CS Because the over here. So what happens is like if you're jumping to masters directly after undergrad, your branch ends up mattering more than the kind of like coursework you had or something like that. Obviously, masters ke liye you'll have to have a very high CG, but let's say you choose mechanical or chemical over here, and you want to do a master's in CS, so then you would have to like show the university you're applying to that you have credible CS skills either by coursework in this college itself or by doing research and internships in CS in some other colleges, which generally strong interns related to IT. And also generally matlab, this ends up getting like very tough for a lot of people, so what they end up doing is they
go for a IT job for 2 years, so they have the relevant work experience, and then they can show the company that, see, I've worked in the so and so company in an IT role for these many for these many things, and I have some tangible outcomes. So then your chances of getting a master's in CS increase. So yeah, as Shikhar said, I feel like if you are really adamant on masters, you should focus on branch more than the college. ओके एंड सहज भैया आपसे ये पूछना था कि लाइक अभी 194 पे हूँ तो मैं शुड आई विड्रॉ या फिर मैं अभी मतलब आई कंटिन्यू फॉर द इटरेशंस? देखो यार, विड्रॉ कर लोगे तो बेसिकली मैं लिख के दे सकता हूँ तुम्हें सीट नहीं मिलेगी, राइट? ऑफ कोर्स नहीं मिलेगी। काउंसलिंग में हो तो एक चांसेस तो है ना, राइट? क्या पता, मेरे टाइम पे मैं भी सोच रहा था कि मैं विड्रॉ कर लेता हूँ, राइट? पर आइट्रेशन 5 में जब मेरे को मिली थी सीट तो वो ओवरवेलमिंग था मेरे लिए, तो राइट, तो ये फैक्टर डेफिनेटली रहेगा। तो बाकी तुम्हारे ऊपर, राइट? हर एक पॉइंट को देखो, तुम सब ओपिनियन ले रहे हो सीनियर्स के में से, राइट? वी अप्रिशिएट दैट थिंग, पर लास्ट में तुम्हारी लाइफ को अफेक्ट करती है जो भी चीजें करती है, राइट? तो हर एक चीज को एनालाइज किया करो, राइट? सबसे ओपिनियन लो, पर हर एक चीज को एनालाइज करो और खुद इंप्लीमेंट करने की कोशिश करो, राइट? क्योंकि इन द लास्ट तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारी लाइफ को इफेक्ट पड़ेगा, राइट? इस चीज से। तो या भैया एक चीज और थोड़ा सा डाउट था मेरा छोटा सा, और भैया मैंने एक चीज नोट करा था, जो आपने अभी आइट्रेशन से कट ऑफ का वो टेबल चार्ट दिया था, है ना? उसमें भैया मुझे एक चीज समझ नहीं आया कि लाइक जनरली केमिकल और सिविल की जो ब्रांचेस होती हैं उनमें लास्ट फाइनल कट ऑफ्स के अंदर 20-25 मार्क्स का डिफरेंस रहता है, बट अभी जो उसमें डिफरेंस था 3-4 मार्क्स का ही था, राइट? थोड़ा तो सा मेरे को वो अजीब लगा मेरे को, राइट, तो हाँ, ये काउंसलिंग प्रोसेस में मोस्टली चीजें थिंग इज कि जब ऐसा होता है, हाँ, देखो मैं बता रहा हूँ होता क्या है, जब होता है कि तुम्हें बिट्स प्लान या किसी टियर 1 कॉलेज में लोअर ब्रांचेस लाइक कोर ब्रांचेस चूज करनी होती हैं, तो उन स्टूडेंट्स के पास काफी टाइम किसी टियर 2 कॉलेज में आईटी के और मतलब सीएस ब्रांचेस के भी ऑप्शन होते हैं, तो एक मेजर चंक जो होता है वो उस साइड चला जाता है, तो यहाँ पे काफी स्टूडेंट विड्रॉ कर लेते हैं, तो उस वजह से आखिरी के इटरेशन में थोड़े कट ऑफ्स में ड्रॉप आ जाते हैं। तो दैट इज द रीजन कि जो तुम्हारे लोअर ब्रांचेस होते हैं उसमें काफी ड्रॉप आ जाते हैं लास्ट के इटरेशंस में। और ऑफ कोर्स जो तुम कहते हो विड्रॉ करना चाहिए, नहीं मतलब लाइक दैट इज योर डिसीजन। अपार्ट फ्रॉम दैट आई विल से कि मतलब जब तक तुम रुक सकते हो रुकना चाहिए, क्योंकि काफी बार ऐसा होता है आखिरी के इटरेशंस में ड्रॉप आते हैं, बट स्टिल यू शुड मतलब हैव अ बैकअप, कोई अच्छा बैकअप कॉलेज तुम्हारे पास ऑप्शन में हमेशा होना चाहिए कि अगर ये नहीं तो ये। लाइक ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम सिर्फ एक तुम्हारे पास ऑप्शन है कॉलेज का, ओपन योर ऑप्शन, सारे ऑप्शन खुले रखो अपने। ओके थैंक यू भैया, थैंक यू फॉर हेल्पिंग आउट। Yeah, so I have one small doubt. I'm Kashyap actually. Right, just proceed further. Yeah, so Bhaiya, what is your view on ENI like course in BITS Hyderabad? So how is it like? Is there any any reviews on that? Is it good or bad? Yeah. Sorry, Anjali. स्पेसिफिकली हैदराबाद का तो मुझे उतना आइडिया नहीं है, लाइक आई एम फ्रॉम पिलानी कैंपस, बट द थिंग इज कि जो तुम्हारी तीनों फिनिक्स ब्रांचेस हैं लाइक ट्रिपल ई, ENI एंड ECE, मोस्टली काफ़ी हद तक कोर्सेज सेम होते हैं, बस 2-3 उनके जो कंपलसरी कोर्सेज होते हैं उसमें डिफरेंस आता है, तो बहुत मेजर डिफरेंस नहीं होता है। तो ऑफकोर्स अगर तुम्हें फिनिक्स अच्छी लग रही है तो यू कैन गो फॉर दैट, और कोई बहुत खास डिफरेंस नहीं होता है। मेजरली जितनी कंपनीज ओपन होती हैं वो तुम्हारी इसके लिए भी ओपन होती हैं। लाइक ECE में एक स्पेसिफिक आ जाता है कि वो थोड़ा तुम्हारा कम्युनिकेशन साइड और सेमीकंडक्टर साइड वाली जो कंपनीज आती है जैसे NVIDIA वगैरह, तो वहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलता है, वरना कुछ खास डिफरेंस नहीं है। तो बस यही है। तो मतलब लाइक अगर थोड़ा यू कैन, हाँ तुम वेबसाइट्स पे जाके हमारा कोर्स कैलकुलम वगैरह देख सकते हो, तो वहाँ से यू कैन गेट बेटर आइडिया, या फिर यू कैन कनेक्ट विद एनी सीनियर्स ऑफ ENI फ्रॉम हैदराबाद कैंपस, तो दे कैन टेल यू बेटर। Okay. So can you once again tell about this, taking that CSE subjects since the second year? Like I've heard from some seniors that you can take the courses like, subjects of CSE from the second year. So can you once tell me about that option? Because एक्चुअली हाँ, ओके तो होता क्या है, लाइक यू हैव मतलब थिंग इज जो तुम्हारे सब्जेक्ट्स होते हैं, यू हैव CDCs जो तुम्हारी कंपलसरी डिसिप्लिनरी कोर्सेज होते हैं, जो मतलब यू हैव टू डू दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट यू गेट ऑप्शंस ऑफ ओपन electives एंड सम अदर ह्यूमैनिटीज electives एज वेल, बट जो अभी तुम यू आर टॉकिंग अबाउट दैट CS electives, तो देयर यू हैव ऑप्शंस ऑफ टेकिंग ओपन electives। तो मतलब यहाँ क्या होता है कि यू हैव ऑप्शन टू चूज मतलब few subjects from different branches, like say you are from ENI, so you can take one course from civil, one course from mechanical, or you can club that and make a minor, or if you want you can take all 5 courses from computer science। तो जो like निशित was saying for that question कि तुमने कुछ CS के courses कर रखे हैं जिससे तुम्हारी credibility बढ़ रही है।
like मतलब यहाँ पे बिट्स में you have काफी flexibility, so you can always explore that option as well. ओपन इलेक्टिव्स के ऑप्शन होते हैं जिससे तुम मतलब दूसरे डिग्री के कोर्सेज भी ले सकते हो, एंड मतलब वो कंपल्सरी होते हैं, लाइक यू हैव टू डू एटलीस्ट 5 ओपन इलेक्टिव्स, तो वो तुम किसी भी डिसिप्लिन के कर सकते हो. Okay. And one more small question. Yeah, Yeah. actually, like triple E, मतलब electronics people do get preference, मतलब जब वो भर रहे होते हैं electives choose कर रहे होते हैं, because for them some of our courses, CS courses are disciplinary electives, right? So basically it is reserved for electronic students, ऐसा समझ लो तुम, if I'm telling in a layman's term कि सिर्फ electronic students ही उन्हें इस point of time में ले सकते हैं sort of. Okay. So yeah, there are special seats reserved for them. So you do get a benefit when you're choosing CS courses, like for example, object-oriented programming, computer architecture, and all. Okay, thank you. Like, and what is your view on IIT Bhubaneswar Mechanical, Bhaiya? Like, how is that? Can we compare it with BITS Hyderabad Electricals, or is it lesser or more? Fees is not an issue. I know it's a weird question, but it's just a small doubt. सो बेसिकली कंपैरिजन करना इतना इस पॉइंट में बेटर नहीं होगा. बेसिकली मैं इस पॉइंट को जिससे जस्टिफाई कर सकता हूँ कि लास्ट में एक पर्टिकुलर पर्सन डिपेंड करता है, राइट. अब सिंस बिट्स काउंसलिंग के बाद भी क्या पता है कुछ लोगों को अच्छी सीट हमारे बिट्स प्लानिंग में ना किसी भी कैंपस में सीट नहीं मिलेगी, राइट. तो इट इज नॉट लाइक दैट कि उसकी अब लाइफ खराब हो जाएगी ना कुछ गलत हो जाएगा, राइट. कंप्लीटली डिपेंड करता है. कुछ लोग बिट्स में आके भी कुछ नहीं कर पाते हैं, कुछ लोग बिट्स के साथ बहुत कुछ कर लेते हैं, राइट. कंप्लीटली डिपेंड करता है, तो कंपैरिजन करना इस पर मैं जस्टिफाई नहीं करूंगा, राइट. Yeah. And one more, one small question, like, मतलब like is there? Okay. Yes, Bhaiya. So I think there is a connection. Yeah, you can proceed further. Yeah, so can we expect a decrease of 15 to 20 marks in the further iterations, or will it be 10 marks near, like a small, because you guys have experience, right? You guys have seen many counselings and all. So one small doubt, will there be a major decrease or will there be a decrease? See, That's my doubt. it completely depends, right? See, the Yes. thing is कि you can at this point you cannot predict. Yeah, you cannot predict कि मतलब how much drop there will be. So generally the trend is that in the lower branches you see a higher decrease, and the upper branches in Phoenix and CS and all, मतलब the decrease is a little less. But of course मतलब you can expect a decrease, but मतलब you should not be fixated on that कि like 15-20 marks there will be decrease of 15-20 marks and I will get that seat. So saying that and talking about that IIT Bhubaneswar and BITS Pilani, and I think मतलब no choices are wrong here. मतलब you can take either of them, जो भी तुम्हें मतलब you find more suitable. Yeah. You can take either of them, और फिर मतलब it depends कि मतलब like what you do after 4 years. So like no Yeah. choices are wrong here. मतलब whatever you find better for you. मतलब if you are interested in ENI or मतलब maybe more inclined toward IT sector or the मतलब electrical sector, you should come for ENI. And if you are मतलब more interested in mechanical or something like that, you can go for IIT Bhubaneswar as well. Okay. So Bhaiya, what is more preferable, ENI or Triple E? Which is, better branch, like generally for tech placements? मतलब if you have a choice, I think I should say that you should go for Triple E, but I don't think that there is a major difference in both of them. So मतलब if you have a choice, you should definitely go for Triple E, because it's मतलब the generally going by the trend, the cutoffs are higher for Triple E, and मतलब it is more of the core branch, so you have more core options as well there. So मतलब it doesn't matter, I think. मतलब Nishit can tell better, I think, on this. Yeah, honestly, just based on the cutoffs alone, I think you got your answer. I mean, you might prefer Triple E. Yeah. True. Okay. Thanks a lot for helping me, and yeah, thank you. हेलो ओ हर्ष दिस साइड. मुझे पूछना था कि लाइक मेरे 213 मार्क्स हैं बिटसैट में, एंड मेरा लास्ट प्रेफरेंस इज गोवा केमिकल, और मतलब मैं इंक्लाइंड हूँ पिलानी कैंपस के लिए. तो लाइक इज देयर इन चांस, मतलब केमिकल का तो चांस मुझे स्लिम ही लग रहा है, बाकी सिविल और मैन्युफैक्चरिंग का चांस है क्या? बिकॉज पेरेंट्स आर गेटिंग एंग्शियस जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, एंड आई हैव बैकअप ऑफ NIT जयपुर सिविल. Your BITSAT score was 213 भैया.
And till now you have get I'm anything? waitlisted. Oh, I haven't filled any MSc choices, dual degree choices. okay. So basically, can you elaborate on your choice filling? Right, in the sense I can. It's like Pilani ENI, Goa ENI, then Pilani Mech, Pilani Chemical, then Goa ENI again, then Pilani Civil, Pilani Manufacturing, and then Goa Chem. Oh, Hyderabad. No Hyderabad. Okay. So yeah, again, इतने particularly comment नहीं कर सकता, पर या expect कर सकते हो कि little chances हैं, right, कि अगर 212 पे तुम्हें पिलानी में 213 क्या पता सीट मिल सकती है, 213 पे हाँ सीट मिल सकती है, right. अगले iterations का वेट करो, मोस्टली हाँ चांसेस है, ये नहीं तुम्हें सीट particularly मिल जाएगी, पर हाँ एक possibility है. लाइक ज्यादा है कि कम है, ऐसा क्या? इतनी possibility की कोई range तो नहीं बता सकता, पर हाँ एक possibility है, इतना comment कर सकता हूँ मैं. डिसेंट इनफ, मतलब डिसेंट इनफ, ज्यादा कम नहीं बट डिसेंट प्रोबेबिलिटीज हैं कि मिल सकती है. एंड मतलब लाइक जितने भी ये क्वेश्चंस है कि मतलब लाइक व्हिच ब्रांच आई कैन गेट और नॉट गेट, मतलब जस्ट अ सेकंड, ये मतलब लाइक जितने भी ये काफी मतलब मेजर लोगों का डाउट है कि मेरा ये स्कोर है, मुझे ब्रांच मिलेगी नहीं. लाइक एट दिस पॉइंट प्रेडिक्ट करना हम लोग के लिए, किसी भी यूट्यूबर के लिए, सबके लिए काफी टफ है. कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, कुछ कंफर्म नहीं है. बट लाइक द थिंग इज कि अगर कुछ डिफरेंस है तो ऑफ कोर्स आखिरी के इटरेशन में हर साल का ट्रेंड रहा है कि मेजर ड्रॉप आता है. तो लाइक अगर तुम थोड़ा और वेट कर सकते हो, यू शुड डेफिनेटली वेट फॉर इट, बट हमेशा अपने बैकअप ऑप्शन ओपन रखो. और लाइक हाँ, किसी के लिए और प्रेडिक्ट भैया करना पॉसिबल नहीं कि विच ब्रांच यू विल गेट या तुम्हें मिलेगा नहीं मिलेगा. तो हाँ जी. और एक चीज मुझे और पूछनी थी कि लाइक जो ऑफलाइन काउंसलिंग वाला है वो क्या है, मतलब उसमें क्या, मतलब जाना पड़ेगा कैंपस? जैसे कि अगर मुझे गोवा कैंप मिलता है तो पहले मुझे गोवा जाना पड़ेगा क्या, मतलब ऐसा? फिर अगर मान लो पिलानी में होता है 5th 6th राउंड में, तो आई एम टोटली अनअवेयर ऑफ दैट. पता नहीं मुझे बिल्कुल क्या है क्या नहीं. थिंक ये सहज बेटर बता पाएगा, क्योंकि लाइक हमारे ईयर में तो वी हैड मतलब ऑनलाइन काउंसलिंग तो हमारा घर से ही हो गया था. आई थिंक लास्ट ईयर ऑफलाइन काउंसलिंग हुई थी, तो सहज कैन बेटर मतलब आंसर दिस क्वेश्चन. एक बार क्वेश्चन रिपीट करना, एक्चुअली योर वॉइस वाज क्रैकिंग. क्या भैया मैं पूछ रहा था कि ऑफलाइन काउंसलिंग का क्या है, मतलब 5th और 6th राउंड तो मतलब बाद में होगा राइट एडमिशन के राइट बाद. तो राइट काउंसलिंग, ऑफलाइन काउंसलिंग में जैसे कि अगर मुझे गोवा केमिकल मिलता है, क्योंकि मैं उसी के सबसे पास हूँ, तो मतलब पहले मुझे गोवा जाना पड़ेगा, फिर देन अगर मान लीजिए फर्दर राउंड्स में मुझे पिलानी मिला तो देन आई हैव टू कम बैक टू पिलानी. राइट तुम्हें ये डेफिनेटली करना पड़ेगा. और रिपोर्टिंग का देखो, अगर तुम्हें गोवा में रिपोर्ट करना ही पड़ेगा, राइट, क्योंकि तुम्हें सीट कैंसिल होने की चांसेस बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं, राइट, क्योंकि अगर तुम रिपोर्ट नहीं करते तो डेफिनेटली काफी बच्चे ऑलरेडी हैं जो उधर रिपोर्ट करेंगे, रेडी हैं. तो हाँ, तुम्हें अगर जैसे कि इन द सेंस लेट्स से कि तुम्हें आइटेशन 4 में गोवा कैंपस मिला, राइट, तो तुम्हें गोवा कैंपस में रिपोर्ट करने को पर्टिकुलर डेट आएगी, तुम उधर रिपोर्ट करोगे जाके, एंड देन आइटेशन 5 में अगर तुम्हें पिलानी मिलता है तो यू कैन शिफ्ट बैक टू पिलानी, राइट. उसमें रिपोर्टिंग कितनी कोई दिक्कत नहीं आती है. तो वो अच्छा. क्योंकि एंड तुम्हारे भैया एक डॉक्यूमेंट है ऑलरेडी सारे वेरीफाई हो चुके होते हैं, तो उसमें इतनी कुछ दिक्कत नहीं है. या एंड भैया एक चीज और पूछनी थी, लाइक 5th एंड 6th राउंड मतलब कंपलसरी तो होते नहीं, तो उनकी क्या प्रोबेबिलिटी होंगे कि अगर नहीं तुम होंगे? वेबसाइट पे भी जाके देखोगे, उन्होंने कंप्लीटली मेंशन किया आइटरेशन 5 आइटरेशन 6 इफ रिक्वायर्ड, राइट, इफ रिक्वायर्ड. काफी ज्यादा ये दो वर्ड्स है, बट काफी ज्यादा सिग्निफिकेंस रखते हैं कि इफ रिक्वायर्ड. तो डेफिनेटली इस पॉइंट पे एडमिनिस्ट्रेशन को हमने मेल की थी, पर कोई सिग्निफिकेंट वो नहीं आ पाया, क्योंकि आइटरेशन 4 के बाद ही कोई भी कमेंट कर सकता है, राइट, इस चीज पे कि आइटरेशन 5 होगी कि नहीं होगी बेस्ड ऑन क्या सीट्स हमारे पास बची हैं, राइट. बट लाइक जनरली तो 2-3 साल से हो ही रही हैं, मतलब हर ही बार होती हैं 5th और 6th राउंड. हाँ होती है, पर या completely depends, right, completely depends. तो डिफरेंट तो हर एक साल में कुछ नया डिफरेंट तो हो ही सकता है यार. 2023 इज एन एक्सेप्शन. ठीक है या भैया, थैंक यू. अच्छा, एक स्मॉल रिकमेंडेशन है. अच्छा, जस्ट अ मिनट, हम एक रैंडम चीज करते हैं. तो निश्चित भैया विल पिक एनी ऑफ यू, एंड या यू कैन आंसर दैट क्वेश्चन, एंड जस्ट ट्राई कि एक से दो क्वेश्चन में वी कैन जस्ट एंड अप, क्योंकि काफी ज्यादा लोग एंक्शियस हो रहे हैं कि हमारी क्वेरीज ली जाएंगी, डेफिनेटली सबकी ली जाएंगी, बट या जस्ट बी क्विक विद दैट. तो हाँ No, निश्चित Said, भैया. I think you pick up and you answer. Me and Shikhar will chime in if it's necessary. तुम शुरू करो यार. Okay, so we will have this Harjeet Singh over here. Hi, good evening. I'm speaking on behalf of my son. He's not here.
He Yeah. has scored 279, and we are just waiting for the next iterations. In the meantime, he has already got Peck Chandigarh CS with data science, and hopefully he'll be getting ICT in Dhirubhai Ambani College. So I main problem is Dhirubhai Ambani, choosing Dhirubhai Ambani versus Peck Chandigarh. And in any case, if we get bits Hyderabad or Goa, we'll be shifting to that. And as far as choices are concerned, we have just filled CS in all the three campuses of bits. Okay, so basically, your main aspiration is CS in any of the campus of BITS Pilani. Right. If we are looking at that, And right? the concern is choosing between Peck Chandigarh and Dhirubhai Ambani as a backup. राइट सो हाँ बेसिकली एक्सप्लोर कर सकते हैं राइट आपके कोई फैक्टर्स लोकेशन वाइज फैक्टर तो नहीं है ना No, nothing specific. राइट सो हाँ डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं कि तीनों कैंपस में से सीएस तो लोग जनरली रिकमेंड करते हैं कि तीनों कैंपस में से कोई भी कैंपस ही हो हाँ तीनों कैंपस आप रख सकते हैं हाँ जब तक नहीं मिलता एज अ बैकअप भी अच्छी ऑप्शन है आपके पास तो या यू कैन जस्ट एक्सप्लोर ऑन दैट थिंग Now the point is like we need to like withdraw from any of the campus because otherwise like money will get stuck up in both the campuses. So where to choose Peck Chandigarh versus Dhirubhai Ambani? Since I cannot comment on that so particularly right कि दोनों ही कॉलेज के पास अपनी काफी ज्यादा अच्छी चीजें हैं राइट सो आई विल नॉट कमेंट ऑन दैट थिंग राइट तो हाँ बट डेफिनेटली आप एक्सप्लोर कर सकते हो राइट कि क्या हो सकती है पर आई विल नॉट कमेंट ऑन दैट Okay, thank you. Like, if I could chime in, I think that like, PEG does come with a lot of legacy and all that, right? So if you do want that factor, I think like PEG is definitely a great choice. But Dhirubhai Ambani also has its own perks, so like keep that in mind like, when you choose. Yeah, okay. Adding on to what Bob said, in the recent years, Dhirubhai Ambani has been great. It is growing consistently. So the thing is that it is better if you talk to the seniors of those colleges and they can guide you better. Try to connect with seniors of Tech and Dhirubhai Ambani College. Like we are not from that college, so we cannot tell you the details what is happening inside the college. So the basic idea of everything you can get on the internet and the actual picture you will get by talking to the seniors there. So it's better to talk to the seniors there. Okay, fine. Thank you for guiding. Hello, Bhaiya. I got 251 in BitSet. I have filled only Phoenix branches in Hyderabad campus. So the thing is, class. I have also kept backup in Ahmedabad University, and the classes are starting this month. So when can I expect to get ENI or Triple E something in Hyderabad? See it completely depends again ये expectation वाला question I recommend कि देखो जो भी होगा we cannot predict that right तो एक्सपेक्टेशन देखो अगर तुम ज्वाइन कर भी लेते हो राइट अगर तुम सीरियसली बिट्स के लिए एस्पायर करते हो एज अ ड्रीम कॉलेज तो या यू कैन डेफिनेटली शिफ्ट राइट तो पर हाँ एक बैकअप के लिए यू कैन ज्वाइन दैट कॉलेज और एक डाउट था कि मतलब अभी मैं अगर उस कॉलेज में ज्वाइन कर गया और इटरेशन 5 या 6 में मुझे बिट्स हैदराबाद मिलता है तो फिर मुझे जो अभी करंट कॉलेज होगा उसमें से टीसी लेना होगा कि स्कूल का टीसी मतलब क्योंकि उनके पास होगा ना जो करंट कॉलेज है तो टीसी कौन सा सबमिट करना होगा बिट्स में जो स्कूल का है वही करंट कॉलेज से तुम्हें वो वापस मांगना पड़ेगा मतलब दैट इज व्हाट आई रिमेम्बर बट यू कैन ऑलवेज कंफर्म इट विद द एडमिन एंड ऑल मतलब मेल करके समझ में आएगा टेंशन नहीं है उसका और एक डाउट था कि मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक्स है फिनिक्स ब्रांचेस है तो उसमें जो मतलब सीएससी के कंपनीज होते हैं वो मतलब ऑलमोस्ट सारे आते हैं कि कितने परसेंट तक आते हैं
Sorry, just repeat your question. जो फिनिक्स ब्रांचेस होते हैं ईसी, ईएनआई और ट्रिपल ई, उसमें कंप्यूटर साइंस के कंपनीज जो होते हैं वो सारे अलाउ करते हैं प्लेसमेंट में बैठने के लिए, कि मतलब ओनली स्पेसिफिक? डेफिनेटली थोड़ा परसेंटेज स्पेसिफिक रहेगा, तो एक सीजी फैक्टर भी इधर रहता है, राइट, कि इस पर्टिकुलर सीजी के अबव हो गए तो इसी तुम्हें कंपनीज अलाउ करती हैं, कुछ कंपनीज, राइट, सारी कंपनीज की बात नहीं कर रहा, कुछ कंपनीज की हाँ दे कंसिडर दैट कि इस सीजी का प्लस होना चाहिए। बाकी अगर तुम देखो काफ़ी कंपनीज आती हैं बिट्स में, तो यार ऐसा नहीं है कि अगर तुम ईसी नहीं है ना जैसे ब्रांच में आओगे तुम्हें कोई इफेक्ट होगा, राइट, कोई इफेक्ट नहीं होगा। अगर तुम्हारी कोडिंग स्किल्स अच्छी है तुम एक्सप्लोर कर सकते हो इन ब्रांचेस को भी। ठीक है, राइट, सो हेलो। हाँ, जस्ट प्रोसीड। Yes. Hello भैया, I am Arush. Currently my BitSat score is 201 and currently I'm in the wait list. I am expecting for Goa Chemical or MSc Chemistry in BITS Pilani campus. So my question is that कि since I am going in chemical, I want to ask about the job prospects because chemical is a branch that not many people know about. So after that, what are the, like, especially in non-core like IT sector and tech sector, I want to know the opportunities that are there. Yeah, so there's no like restriction. Obviously, like as already pointed out, especially in your summer internships, most IT companies do not open for chemical or any other core branch. All right, there'll be like half of the companies you won't be able to serve specifically in your summer internships. In your placements में तो ऐसा कुछ ज़्यादा scene नहीं होता है. Many chemical people do get IT placements easily, but you have to somehow figure a way to manage out your coding, learning DSA and all that with that. Yeah, that's it. Right, and one more question I have, that actually currently I do not have a backup. So because I have just passed 12th, I am as a backup I am going for a drop. So that is a thing I want to ask, that should I wait longer, because if I take a drop I have to spend a lot of time in revising and all that. That will take a lot of time, and counseling is a long process. So I want to ask you that should I take admission in any coaching or institute of my choice, or should I wait longer till the last iteration? See, taking a drop is a decision that you have to just think twice, thrice, and as many times as you want, right? कि अगर तुम ड्रॉप लेना चाहते हो तो बी वेरी स्पेसिफिक दैट, कि नहीं कि तुम्हें एक बस थॉट आई और यू गो फॉर यार गोइंग फॉर द ड्रॉप, राइट। तो ड्रॉप लेना काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल फैक्टर होता है, राइट। अगर तुम ये भी सोच रहे कि मैं ड्रॉप ले लेता हूँ एंड ये भी सोच रहे हो कि मैं कोई कॉलेज ज्वाइन कर लेता हूँ, राइट, तो मतलब तुम एक अगेन एक सस्पिशियस थॉट में हो कि मेरे को क्या करना चाहिए, राइट। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से पहले अपने आप को क्लियर कर लो, राइट, क्योंकि ड्रॉप लेना इतना आसान नहीं होता है, राइट। ड्रॉप के बाद भी अगर नहीं हुआ, राइट, ऑब्वियसली एक फैक्टर रहेगा, बट यू हैव टू बी सीरियस अबाउट दैट, राइट। तो ड्रॉप लेने से पहले ये सोच लेना कि तुम्हें आर यू सीरियस अबाउट दैट थिंग, राइट। सो या Actually, the thing is that I do not. I have applied for JOSA, and actually I do not have any backup college. That why the drop is the option I have other than BITS. So that right, why I asked, and and accept that, like, I am like considering my score, I will probably get core branches only. That's why I asked that. So for the drop and preparing for the year. राइट राइट, यू कैन एक्सप्लोर दैट थिंग, बट या अगेन आई विल सजेस्ट कि अगर तुम काफ़ी लोग ड्रॉप क्यों लेते हैं, राइट, कि काफ़ी लोगों को आईआईटी जैसे भी मिल रहे होते हैं, पर वो ड्रॉप लेते हैं कि उनको कोई भी ब्रांच पानी होती है, तो दे आर बेसिकली राइट कि मेरे को चाहिए तो यही चाहिए, राइट, एंड दे आर सीरियस अबाउट दैट थिंग। तो ये चीज़ को रिकॉग्नाइज करके चलना पहले से ही, राइट। एंड अगेन टेकिंग अ ड्रॉप इज अ टफ डिसीजन, राइट। तो अब मैं बार बार कहता हूँ कि ड्रॉप एक फैंसी वर्ड बन गए हैं कि हर एक दूसरा बंदा ड्रॉप ले रहा है, राइट। इट इज नॉट लाइक दैट। कंप्लीटली सोचना, एनालाइज करना कि 1 साल जाएगा, राइट।
तो हम काफ़ी बार ये ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं जो क्या पता बाद में हम अपने ऊपर डिपेंड कर लेते हैं कि उस पॉइंट पे ड्रॉप नहीं लेना चाहिए था, राइट? तो या एक ये फैक्टर डेफिनेटली कंसिडर करके चलो अभी से अपने Okay, okay. Thank you so much. That is all I have to ask. Thank you. Hello, Bhaiya. This is Hello. Rohit. Yeah, Janish, you can go. Hello, my name is Dinesh. I'm from Udaipur, Rajasthan, and I scored 212 in BitSec. So I'm probably going to take an MSc in Pilani campus. I'll get bio for sure, that is a guarantee. But I was going to ask about the scene of bio and all. Like, is bio light other than other MSc duals? मतलब मैंने ये सुना है कि मैथ्स का बेसिकली प्लेसमेंट्स में कुछ काम आता है, बायो का कुछ काम आता है क्या? जिससे बायो फिजिक्स का कुछ काम नहीं आता बेसिकली, बट इज बायो लाइट देन अदर एमएससी लाइक फिजिक्स और केमिस्ट्री? राइट, तो Okay, so I बायो will के take बारे में this one. शिखर मतलब विला मेरी वेलकम खुद की हाँ हाँ, तो बायो में okay, एमएससी so बायो से मेरी खुद हमारे की शिखर ब्रांच विला। एमएससी बायो प्लस कंप्यूटर साइंस है. So the thing is, okay, so यहाँ होता क्या है कि from the perspective of ये तुम्हारी प्लेसमेंट, लाइक बायो तुम्हारा ऑलमोस्ट कोई फायदा नहीं देने वाला है, बट लाइक रिसर्च वगैरह में अगर तुम जाना चाहते हो तो बायो में भी काफ़ी रिसर्च ऑप्शंस होते हैं, और फिर तुम्हारी जो दूसरी बी ब्रांच होगी उसके साथ कॉम्बिनेशन में भी बायो के काफ़ी अच्छे रिसर्च ऑप्शंस खुलते हैं. एंड टॉकिंग अबाउट की लाइट है कि नहीं ऐसी मतलब बायो में द थिंग इज कि यहाँ पे थोड़ी तुम्हारी चीज़ें थोड़ी बाकी ब्रांचेस से अलग होती है. लाइक इट्स नॉट कि ये बहुत ही डिफिकल्ट है, लाइक मैथ्स एंड ऑल, मतलब डिफिकल्ट नहीं कहूँगा मैं, बट लाइक कि थोड़े एफर्ट्स एक्स्ट्रा लगते हैं वहाँ पे. यू हैव टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड समथिंग लाइक दैट. बायो में क्या होता है कि जो तुम्हें क्लास में पढ़ाया जा रहा है तुम्हें उतना आना चाहिए. तो बट द थिंग इज कि बायो में यू हैव टू बी रेगुलर इन द क्लासेस. तो मतलब अगर तुम क्लास जा रहे हो तो काफ़ी ईजी हो जाता है स्कोर करना, बट अगर क्लास नहीं जा रहे हो तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. तो फिर वो थोड़ा डिपेंड करता है पर्सन पे भी. लाइक मैंने अपने ब्रांच में देखा हुआ है बैचेस में कि कुछ बच्चे होते हैं उनको क्लास जाने में एकदम इंटरेस्ट नहीं आता है तो वो थोड़ा सफर करते हैं, बट जो बच्चे थोड़ा रेगुलर हैं, जो इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं क्लास में, वो काफी अच्छा करते हैं. तो मतलब तो वही डिपेंड करता है. तो लाइट उस पर्सपेक्टिव से है कि एग्जाम अगर तुम क्लासेस में रेगुलर हो तो तुम्हें एफर्ट्स थोड़े से कम डालने पड़ते हैं, बट एज सच कुछ बहुत लाइट या वैसा कुछ डिफरेंस नहीं है. I'm pretty sure I won't go into research and all. So, I'll probably take a placement based off my B degree and all. So I'll take bio for sure. But I heard somewhere that bio people are not, they're not seen good or something like that. Is that true? मतलब आई डोंट थिंक कि मतलब वो कुछ एक दो लोगों का पर्सनल पर्सपेक्टिव होगा, मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा, बट ऐसा एज जनरल कोई ट्रेंड नहीं है कि बायो पीपल को अच्छा नहीं देखा था, ऐसा कुछ नहीं है. लाइक मोस्टली अगर तुम प्लेसमेंट के पर्सपेक्टिव से देख रहे हो तो मोस्टली इट्स बेस्ड ऑन योर मतलब बी ब्रांच. लाइक इधर यू आर फ्रॉम सीएस फिनिक्स और मतलब मैन्युफैक्चरिंग केमिकल समथिंग लाइक दैट. तो वो पर्सपेक्टिव एकदम अलग है. और वो एक दो लोगों का कोई पर्सपेक्टिव होगा उस पर मैं कुछ कमेंट नहीं करूंगा कि उनको बायो अच्छी लग रही है नहीं लग रही है, बट लाइक कोई ऐसा कुछ मतलब ऐसा बायसनेस नहीं है कॉलेज में कि तुम बायो से हो तो तुम्हें मतलब कहीं पर नेग्लेक्ट किया जाएगा या किसी कंपनी में तुम्हें एलिजिबल नहीं होने देंगे. ऐसा कुछ भी नहीं होता है. लाइक वो उसके लिए तुम मतलब सबके इक्वल हो. लाइक अगर तुम अपनी ये वाली पर्सपेक्टिव हटा दो, तुम कह रहे थे कि एमएससी मैथ्स को प्रेफरेंस मिलती है लाइक इन सम क्वांट कंपनीज समथिंग लाइक दैट, तो बाकी सारी बी ब्रांचेस तुम्हारी मतलब ऑन पार सेम लेवल पे आती हैं. हाँ, अगेन एक और एक्सेप्शन है कि अगर तुम किसी फाइनेंस कंपनी में जा रहे हो तो वहाँ इको वालों को प्रेफरेंस मिलेगी. तो बस ये एक दो एक्सेप्शन है, उसके अलावा सारी सेम चीज तुम्हारी बी पर डिपेंड करेगी. Hello, Thank Bhaiya. you. This is Rohit. Yeah, Rohit, proceed further. सर भैया मेरे बिटसेट में 231 मार्क्स है और मुझे करंटली एमएससी फिजिक्स गोवा कैंपस अलॉट हुई है. तो मुझे पूछना था कि थर्ड ईयर में हम बीई डिग्री और एमएससी डिग्री कैसे पढ़ते हैं डुअल डिग्री में, ये दोनों मैनेज कर पाए. ओके ओके सो होता क्या है, फर्स्ट ईयर में तुम्हारे कॉमन कोर्सेज होते हैं जो सारे ब्रांचेस वाले सेम पढ़ते हैं. सेकेंड ईयर में तुम अपने स्पेसिफिकली कुछ इलेक्टिव्स करोगे, मोस्ट प्रॉब्ली ह्यूमैनिटीज इलेक्टिव्स, और साथ में तुम्हारी जो तुम्हारी एमएससी डिग्री है उसके कोर्सेज करोगे. एंड इन थर्ड ईयर मतलब तुम साइमल्टेनियसली अपने दोनों डिग्रीज के एमएससी और जो तुम्हारी बी डिग्री होगी उसके कोर्सेज करोगे. लाइक अगर मैं अपनी बात करूँ तो अगले साल का अगर मैं स्प्लिट बताऊँ तो आई विल बी हैविंग 7 सब्जेक्ट्स, आउट ऑफ देम 4 आर फ्रॉम सीएस एंड 3 आर फ्रॉम बायोलॉजी. सो दैट्स द स्प्लिट यू विल हैविंग इन मतलब थर्ड ईयर. और भैया जैसे 2 साल मतलब फोर्थ और फिफ्थ ईयर में मेरा बीई डिग्री भी खत्म हो जाएगा एमएससी के साथ.
या मतलब 5th ईयर तक तुम्हें तुम्हारी एमएससी डिग्री, बी डिग्री, इंटर्नशिप, एवरीथिंग, मतलब 5th ईयर तक सब खत्म हो जाएगा। ओके सर, और अभी चांसेस है कि मुझे पिलानी कैंपस में मिल जाए एमएससी फिजिक्स? अभी तो गोवा अलॉट हुई है 231 मार्क्स। सी मतलब स्टिल इस टाइप के जितने क्वेश्चन है सब पे सेम आंसर है कि यस चांसेस हैं, बट मतलब डेफिनेटली हाँ बोलना ना बोलना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। तो मतलब आई कैन नॉट से कि मतलब हाँ कंफर्म मिल जाएगी नहीं मिलेगी। चांसेस हमेशा हैं जब तक मतलब काउंसलिंग खत्म नहीं हो रही है और तुमने विड्रॉ नहीं किया, चांसेस हमेशा रहेंगे। ओके भाई, मतलब ऑफ कोर्स ऐसा नहीं कि लाइक यू हैव 100 मार्क्स तो तुम सीएससी एक्सपेक्ट कर रहे हो, बट लाइक मतलब छोटे मोटे मतलब 10-15 मार्क्स के रेंज में चांसेस हमेशा रहते हैं। ओके भाई, थैंक यू। हेलो Hi, Bhaiya. हेलो Bhaiya, I'm Dia, and my PITSAT score is 198, and I'm aiming for MSc Bio in BITS Pilani. Do you think कि there's chance of getting it? I know it's getting repetitive, but I'm a little worried because I'm a be in the waiting list. Yeah, so मतलब the question is getting repetitive and the answer still remains same कि मतलब of course there is a chance, but still I cannot predict कि मतलब and say for sure कि you will get it or not. मतलब you should definitely wait for that and मतलब hopefully, क्योंकि लाइक मैंने मतलब लास्ट 2 के काउंसलिंग्स देखी हैं तो उसमें मेजरली एक जब तुम्हारी जोसा खत्म होती है एंड काफी कॉलेजेस की काउंसलिंग खत्म होने लगती है तो लास्ट के 1-2 इटरेशंस में मतलब एक मेजर वो ड्रॉप आता है उसमें कट ऑफ्स में। स्टार्टिंग में क्या होता है क्योंकि लाइक पीपल मतलब जोसा में भी वो सीट रखते हैं तो पिलानी में भी रखते हैं, मतलब बिट्स में भी रखते हैं, तो कोई विड्रॉ नहीं करता है तो उससे होता क्या है या तो कट ऑफ में डिक्रीज एकदम नहीं आता या सिर्फ स्लाइट 1-2 मार्क्स का आता है। लाइक चांसेस हैं बट कुछ फॉर श्योर कहना बहुत डिफिकल्ट है इस पॉइंट पे। एंड भैया एक और चीज़ थी, जैसे आई एम होपिंग कि जैसे एमएससी बायो अगर मुझे मिलती है और तो मुझे लगता है कि क्या हमें अपनी बीई डिग्री पढ़ने का टाइम होगा, जैसे मतलब फॉर एग्जांपल जैसे सीएस मिलती है तो क्या हम एक्चुअली एक्स्ट्रा कोर्सेज और जैसे कॉम्पिटिशन्स और इस तरह की चीज़ें कर पाएंगे या वी जस्ट बी स्ट्रगलिंग टू मेक एंड्स मीट दोनों डिग्रीज के? लाइक सी दैट डिपेंड्स ऑन द पर्सन। मतलब लोग ऐसे भी है जिनकी बहुत ही कोई सिंगल डिग्री ब्रांच है, वो भी थोड़ी मैन्युफैक्चरिंग टाइप की जिसमें थोड़े कोर्सेज कम होते हैं, थोड़ा ईजियर साइड होती है, स्टिल वो लोग स्ट्रगल करते हैं। एंड पीपल आर देयर जो मतलब दे आर डूइंग देयर एमएससी डिग्री विद अ बी डिग्री एंड विद दैट दे आर जगलिंग अ माइनर एज वेल एंड दे आर एक्सेलिंग इन ऑल द 3 फील्ड्स। So like it depends on you. If you want, you can do that well. And talking about that, कि मतलब almost in specifically in a single campus, you will have almost 400 dualites. So उनके पास भी BE होगी और उनकी MSc होगी, तो वो साथ में कर रहे होंगे और उसमें से ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो ऑफ कोर्स यू कैन मैनेज, मतलब बहुत सारे लोग मैनेज करते हैं और वो मतलब लाइक इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैनेज करना आ भी जाता है थोड़ा बहुत कि हर चीज़ एक साथ मैनेज करना, जगल करना, वो सीख ही जाते हैं कॉलेज में आके। लाइक हो सकता है स्टार्ट में थोड़ी डिफिकल्टी आए बट विद टाइम वो मैनेज हो जाता है। ओके, नहीं मतलब जैसे मेरा मतलब है नहीं, ऑफ कोर्स मैनेज हो जाएंगी दोनों डिग्रीज, बट जैसे अगर फॉर एग्जांपल मुझे सीएस मिलती है उसमें होपफुली तो उसके बाद क्या मेरा जैसे मेरा मन है कि मैं कोई हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करूं, मैं कोडिंग में एक्स्ट्रा काम करूं, इस तरह की चीज़ें, विल आई बी एबल टू गेट द टाइम? हाँ You definitely हाँ 0% अटेंडेंस पॉलिसी का टाइम ये की कमी एटलीस्ट यहाँ मतलब बिट्स में तो मेरे हाँ बिकॉज आई हैव कोई कमी तो नहीं होने वाली। लाइक मतलब ऑफ कोर्स कि अगर कोई हैकाथॉन आ रही है यू कैन स्किप फ्यू क्लासेस, हाँ, और फिर 0% अटेंडेंस का फायदा उठा के यू कैन मतलब डेफिनेटली गो फॉर एनीथिंग। तो मतलब ये सब तो बहुत इजीली मैनेज हो जाता है, हैकाथॉन वगैरह तो काफी इजीली मैनेज हो जाएगा। हाँ मतलब एग्जाम्पल जैसे मैंने सुना है कि वहाँ पे क्विजेस बहुत होती है ना जो सीजीपीए अफेक्ट करते हैं, यू कांट स्किप क्लासेस एंड सच। आई मीन आई हैव हर्ड ऑन यूट्यूब। सी हाँ अब कोई फैक्टर रहता है डेफिनेटली, बट वो या अगर तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा करना है इट्स कंप्लीटली टू योर। थैंक यू सो सी मच। अब इसमें क्या होता है लाइक फर्स्ट ईयर में वो तुम्हारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। जस्ट सेकंड, मतलब आई वाज सेइंग कि फर्स्ट ईयर में क्या होगा जो क्विजेस है वो थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मतलब यू हैव अ गोल कि आई शुड गेट 8.5 एंड हायर सीजीपीए टू गेट अ गुड ब्रांच। तो वहाँ पे तो एकदम रिकमेंडेड नहीं रहता है कि यू मिस समथिंग, बट लाइक अनलेस यू आर प्लानिंग फॉर कि मतलब मुझे हायर स्टडीज में जाना है जहाँ पे मेरी सीजीपीए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे तुम मतलब अपने सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स कुछ क्विजेस मिस कर सकते हो। और ये भी नहीं कहूँगा कि मिस कर सकते हो, मतलब उसके बाद भी यू हैव बफर एंड ऑल की मतलब लाइक बेस्ट आउट ऑफ 4, सॉरी मतलब बेस्ट 3 आउट ऑफ 4 और समथिंग लाइक दैट। तो मतलब डेफिनेटली 1-2 क्विजेस किसी भी रीजन की वजह से यू कैन मिस, तो मतलब कोई उतना इशू नहीं है।
Thank you so much. Hello, भैया, I am Garv. So yeah, Garv, proceed further. भैया मैं लखनऊ से हूँ, मुझे मेरे 262 मार्क्स आए। मुझे पूछना था कि मेरे को MNIT इलाहाबाद में EC मिल रही है और पिलानी में वो मिल रही है MSc को। राइट। तो फिर क्या लेना चाहिए? राइट, कंप्लीटली डिपेंड करता है कि इन द सेंस कि तुम्हें किस साइड जाना है। राइट, अगर इको की तुम्हारा एक इंटरेस्ट है तो MSc को कंसिडर कर सकते हो तुम। नहीं, इको नहीं, MSc को सोच के मैं ले रहा हूँ कि नेक्स्ट ईयर EC या ट्रिपल या फिर CS मिल जाएगी। राइट, कंप्लीटली डिपेंड करता है तुम पे कि तुम आके कितने एफर्ट्स डालोगे और तुम कितना सीरियस हो। राइट, तो कंप्लीटली क्योंकि क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। काफ़ी देखो, काफ़ी बच्चे आएंगे चाहे MSc बायो हो या ना कोई भी ब्रांच लेके आएंगे, दे आर थिंकिंग कि फर्स्ट ईयर में आएंगे एंड बाय देयर हार्ड वर्क वो सेकेंड ईयर में मोस्ट प्रॉब्ली जो एस्पायर कर रहे हैं ब्रांच वो ले लेंगे। राइट, पर काफ़ी बच्चे फर्स्ट ईयर में जब आ जाते हैं तो ही काफ़ी डिस्ट्रैक्शंस उनको फेस करने लगते हैं। राइट, डिस्ट्रैक्शन नॉट इन द सेंस कि क्लब्स वगैरह वहाँ इंट्रोड्यूस होंगे आपको और उनको लगने लगता है कि अगर मेरे को क्या पता जो मैं ब्रांच चाह रहा हूँ उसके बिना ही ये सब अपॉर्चुनिटीज जो मैं लाइफ में चाह रहा हूँ मेरे को मिल जाएगी। तो ब्रांच एक फैक्टर कंसिडर नहीं भी करके रखते हैं कुछ लोग। राइट, तो या एक फैक्टर वो भी रहता है, पर डेफिनेटली तुम MSc को अगर ले सकते हो पिलानी में एंड CS जा सकते हो। राइट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, जो भी तुम ब्रांच एस्पायर कर रहे हो। गर्व, तुम्हें MNIT इलाहाबाद में कौन सी ब्रांच मिल रही है? EC नहीं, द थिंग इज दैट तुम हो कहाँ से? लखनऊ से हो, यू सेड, राइट? लखनऊ से। हाँ, so you would know that MNIT Allahabad is like not like it is a very good college, ठीक है? So like what I would say is कि if you have that certain thing कि तुम्हें बिट्स में जाना है तो बात अलग है। बाकी you have like a very good backup in MNIT Allahabad is what I would say। बाकी वहाँ पे current situation क्या है, current कैसा मतलब स्टडीज कैसी हैं या प्लेसमेंट्स कैसी हैं, तो वहाँ अगर तुम किसी को जानते हो तो डू आस्क देम। बट आई वुड से दैट MNIT Allahabad EC is also like a very good option। हेलो। हाँ, I just proceed further। हाँ भैया, माय क्वेश्चन इज दैट कि डुअल डिग्री के साथ माइनर्स वगैरह लेना मैनेजेबल होता है या नहीं होता है? मतलब सपोज मैं डुअल डिग्री में कंप्यूटर साइंस चाहता हूँ, लेकिन अगर सपोज मुझे मैकेनिकल मिल गया, इन दैट केस मैं चाहूंगा कि फाइनेंस वगैरह में कोई माइनर ले लूँ, तो वो मैनेजेबल होता है कि नहीं? करते हैं बहुत लोग, बट डुअल डिग्री के साथ माइनर मैनेज करना इज एक्सेप्शनली लाइक चैलेंजिंग बिकॉज मोस्टली तुम्हें समर टर्म करना पड़ेगा एंड इन दैट समर टर्म यू हैव टू डू अ कोर्स, ठीक है? तो it has been done by seniors before, it is doable, but वही है, you have to either take the path of a summer term या फिर अगर by some degree combination अगर तुम्हारे पास required slots खाली हो तो तुम वो कर सकते हो। क्योंकि माइनर का जो फ़ायदा होता है that is generally reaped in your pre-final and final semester, so you have to be done by all your minor courses before that to reap the benefits of the minor. So that is why it is like really, sort of challenging to do a minor with a dual degree. You can do that, but you might not be able to reap the full benefit. Especially that is true, especially for finance. Like data science के लिए it might feel a little bit less true. फाइनेंस में माइनर्स का स्कोप कैसा रहता है? मतलब like finance minors, they're one of the best things. Sorry? फॉर एग्जांपल मैंने मैकेनिकल के साथ फाइनेंस में माइनर ले लिया, तो कैसा फाइनेंस में कैसा स्कोप है? Finance minor is one of the best things in bits. Okay, so like you might know about the practice school system. So PS2 is of 6 months, and in your considering you are a singleite, मतलब you are a dualite, sorry, तो like in your 5-1 PS2, मतलब तुम्हारा जो पहला PS2 होगा 6 महीने का, उसमें मोस्ट फाइनेंस के काफ़ी सारे कंपनीज आते हैं, JP Morgan, Morgan Stanley,
HSBC, Credit Suisse, and they come for investment banking roles. And they legit look only at the course grades of your finance minor courses. That is a thing we call offshoot at BITS. Okay, so they only look at that. And so if you excel in your minor courses and you have a like average CG, then also you can get a pretty good opportunity at all these big firms, and that can be a great exit for your career in finance. That is why a lot of people, legit a lot of people, choose a finance minor after they come to BITS. And I think ओके this is भैया one of the बहुत things that you guys should also know. और मेरा एक और क्वेश्चन है कि जैसे डुअल डिग्री में जो फीस हो जाता है वो काफी हाई हो जाता है, तो हम कॉलेज में कैसे अच्छा खासा अमाउंट अर्न कर सकते हैं? मतलब कुछ फ्रीलांसिंग वगैरह वो कितना हार्ड होता है?